Thank you very much for joining us here this morning. We begin the show with big news that we're tracking as far as the Salman Khan firing case is concerned. In fact, major breakthrough in the case is what we know so far. Let's tell you that the Mumbai crime branch has arrested both the accused. In fact, you're looking at the pictures on your screens as well. The accused have been arrested from Gujarat. So that's the significant input that we are tracking here as far as the Salman Khan case is concerned. My colleague Shivani gets us more details. निकाला है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि उस समय जो एक पर्टिकुलर वैन सिक्योरिटी की मौजूद होती है सलमान खान के घर, वो मौजूद नहीं थी। वो पेट्रोलिंग के लिए, सुरक्षा के लिए त्योहार के मौके पर बाहर सक्रिय थी और इसीलिए किसी ने भी आरोपियों को फॉलो नहीं किया, वरना इन आरोपियों को मुंबई की बाउंड्री के भीतर ही पकड़ा जा सकता था। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि पकड़ने में आसानी कहाँ से होती है कि ये जो पूरे सीसीटीवीज यहाँ पर लगाए गए थे सलमान खान के घर के बाहर, वहां पर के सीसीटीवी फुटेजेस से आरोपियों की शिनाख्त की गई, उनके मूवमेंट की पूरी जानकारी निकाली गई, जिसके बाद बाइक बरामद की गई है। हालांकि लेटेस्ट अपडेट फिलहाल क्राइम ब्रांच द्वारा ये मिला है कि 8:55 की एयर इंडिया की फ्लाइट से दोनों आरोपियों को मुंबई 10:10 पर लैंड किया जाएगा और उसके बाद सीधे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उन्हें मुंबई के कमिश्नरेट ऑफिस में ले जाया जाएगा। कमिश्नरेट ऑफिस में ले जाने के बाद उन्हें सबसे पहले मुंबई की जिला न्याय कोर्ट यानी कि किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। साफ तौर पर जिस तरीके से हितेन भी जानकारी दे रहे थे कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो बंदूकें इस्तेमाल की गई थी, उन्होंने पानी में बहाया जरूर है, लेकिन उसकी प्रॉपर लोकेशन मिली है और इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो गुजरात पुलिस की मदद से, साथ के सहयोग से उन हथियारों को भी बरामद जरूर करेगी। हालांकि दोनों आरोपियों ने पूरे आरोप को एक्सेप्ट किया है। All right, that is, of course, my colleague Shivani getting us the latest essentially as to what has panned out so far in the investigation. In fact, she's making prominent points over there as far as this case is concerned, because she's, of course, gone on to state that with the fact that they will be got from Gujarat to Mumbai and be produced before the Mumbai Commissioner of Police. Let me take that point across to my colleague Ankit, who has been continuously reporting on this. Ankit, good morning. Significant develop, major breakthrough as far as this case is concerned. Give us a quick sense of how this action took place and what do we know next? Yes, that's absolutely right. Here, very importantly, the two accused will brought back to Mumbai. And Mumbai crime branch will do all the entire investigation in this case. Apart from that, we have to very importantly that the investigation is very, very important, because as we all know, there was a unknown dictionary who from the Facebook post that took the responsibility over here, and now Mumbai police will produce them before the court and they will demand more custody before the court, because in the custody there are many things which needs to be resolved. What is the modus operandi in this case? What is the exact reason they did? How they have traveled? From where they got done and everything? That investigation is Mumbai police needs to be done, and that is the reason they will demand more custody in this case. Next 2 hours there will be the accused in Mumbai for the investigation. Yes, definitely. Within 48 hours, Mumbai police arrested with the help of that crime branch have arrested these 2 accused in this case. They will produce all the accused before the court today. Right, Ankit. Thank you very much for getting us the details as far as what has transpired so far in terms of the big action coming in of the accused being arrested from Gujarat. I understand my colleague is joining me for more inputs. Hiten, good morning. जहां तक यहाँ ब्रेक थ्रू मिला है और गुजरात में इनको अरेस्ट किया गया है, क्या जानकारी है अभी तक? ऑडियो लेवल ऊंचा करें। देखिए, बीती रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। जो कच्छ की लोकल क्राइम ब्रांच है, पश्चिमी कच्छ की लोकल क्राइम ब्रांच ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। हालांकि जो कच्छ पुलिस की तरफ से अब तक आधिकारिक बयान दिया गया, उसके मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम बीती रात कच्छ पहुंची थी। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर फरार हुए दोनों आरोपी जो है वो कच्छ भुज में छुपे हुए होने की बात है, जिसके चलते मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कच्छ आई है। उसके बाद लोकल क्राइम ब्रांच ने और कच्छ पुलिस ने अपने सोर्स को डेवलप करते हुए
खबर की पुष्टि करने के बाद करीब रात में 1:30 से 2 बजे के बीच एक जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों को गिरफ्तार किया। उसके बाद लोकल थाने ले जाकर इनसे जब पूछताछ की गई तो कच्छ पुलिस ने आधिकारिक बयान में ये साफ तौर पर कहा है कि उन दोनों ने कबूलनामा भी किया है कि इनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका ताल्लुक था और लॉरेंस गैंग के कहने पर ही इन दोनों ने इस पूरे के पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया था और उसके बाद वो फरार होकर गुजरात के कच्छ में भुज में मातानोमढ़ नाम का एक इलाका है वहां पर जाकर छुपकर बैठे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कबूल किया है कि मुंबई से गुजरात आते हुए सूरत के पास एक नदी में उन्होंने वेपन्स जो है वो बहा दिए थे। अब गुजरात पुलिस और मुंबई पुलिस का काम होगा कि उन वेपन्स को नदी से जो है वो रिकवर करना। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच को हवाला जो है वो सौंपा गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच कुछ देर पहले ही उन दोनों आरोपियों को फ्लाइट से लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई है। 10:30-11 बजे के करीब मुंबई पहुंच जाएगी। उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर ले जाकर पूछताछ करके मुंबई की कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की तफ्तीश जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कच्छ लोकल क्राइम ब्रांच ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक बड़ी सफलता जरूर कही जाएगी कि कुछ घंटों के भीतर ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया और उनका कबूलनामा तक लिया गया। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि क्राइम हुआ है, लेकिन क्राइम के बाद आरोपी क्या खुद कबूल करते हैं या फिर एविडेंस के आधार पर यह आरोप सिद्ध करना पड़ता है, ये एक सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर आरोपियों ने खुद ही कबूल कर लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका ताल्लुकात था और गैंग के कहने पर ही उन्होंने इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया था। अब इन्वेस्टिगेशन में ये सिर्फ तार जोड़ने होंगे कि मुंबई से भुज करीब 850-900 किलोमीटर का जो सफर है वो कैसे तय किया, किन किन लोगों ने इनकी मदद की। क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई खुद गुजरात के साबरमती जेल में अहमदाबाद में बंद है और I have to interject you there, but for the moment, thank you very much for getting us the latest as far as how this transpired. Initial details, of course, about the fact that how they were arrested and more importantly, what's going to take place legally speaking. For the moment, let's leave it at that. We're going to shift our focus to more news that we are tracking this morning.